Hello friends. So today we are going to see a psychological theory, that is Erikson's theory of psychosocial development. I am Dr. Niaz Ahmed. So today we will be starting a psychological theory to study the human development. Let's begin. So Erik Erikson is a famous psychoanalyst. He postulated that the development of an individual is the result of his interaction with his social environment. So right from the birth of a child, his social environment put him under specific pressure or crisis, so making specific demands at different ages of his life, and the individual tries to meet these specific demands, crises, by reaching psychologically in his own way. So if you see that the growth and development of the child is the resultant of his interaction with his social environment, according to Erik Erikson. And he says that from his birth to whole life, his development is dependent on the specific pressure or crisis put on him by the environment. So this pressure make him specific demands at different ages of his life, and the individual tries to meet these specific demands, crises, by psychologically in his own way, and ultimately the human development take place, or psychosocial development take place of a child. Okay, so Erikson has discovered 8 issues or crises of life arising at different stages of one development, and this 8 crises covers entire लाइफ स्पैन. तो अगर आप देखेंगे तो एरिक्सन का कहना है कि जो भी इंडिविजुअल है उसका डेवलपमेंट उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से कैसा होता है उसके हिसाब से होता है, और उसके बेस पे उन्होंने 8 क्राइसिस या इश्यूज फाइंड आउट किए जो इंडिविजुअल के डिफरेंट स्टेजेस में ये क्राइसिस होते हैं, और ये इंटायर लाइफ उसके चलता है, और इसी क्राइसिस के आंसर वो साइकोलॉजिकली जो इंडिविजुअल देता है उसी से उसका psychosocial development होता है. Okay, so let's see these 8 crises. So let's see the first stage, that is trust versus mistrust, and that ranges from birth to 1.5 year. So the first stage of psychosocial development is trust versus mistrust. So what happens here, it ranges from birth to 1.5 year. So here at the beginning, at the birth, at the very less age, the child completely dependent on his mother or others for fulfillment of his basic needs. Okay, so the way he is nourished, handled, protected and kept safe and comfortable may provide the baby with sense of security or unsecurity. Okay, so अगर आप शुरू की एज अगर देखेंगे तो जो बच्चा होता है कम्प्लीटली अपने मदर या और कोई केयर टेकर पे डिपेंड होता है अपने बेसिक नीड्स के लिए. तो जैसे उसको नरिश किया जाता है, जैसे उसको हैंडल करते हैं बच्चे को, जैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं, उससे उस बच्चे के अंदर क्या सेंस आता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी डेवलप होती है. ठीक है, so इसी स्टेज के अंदर if you see here, if these needs are not satisfied of a child, the child gradually loses his sense of faith in the world around him. So the sense of trust or mistrust depend on the environment. So it's basically depend on the environment, and it is reflected in the developing personality. So this is completely reflected in his personality. So if the needs are not satisfied, the child will develop a sense of mistrust toward the world. Okay, and it reflects in his personality. Okay, so अगर उसकी जो भी needs है अगर वो satisfy नहीं हो रही है तो gradually क्या करेगा वो बच्चा, वर्ल्ड के तरफ वो अपना सेंस ऑफ फेथ नहीं डेवलप करेगा, लूज़ कर देगा अपना सेंस ऑफ फेथ और मिस्ट्रस्ट डेवलप कर लेगा. और ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है, इन्वायरमेंट पे, कि कैसा इन्वायरमेंट उसके आसपास उसको मिल रहा है, और यही चीज़ उसके पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. लेट अस सी द सेकेंड स्टेज हियर. सेकेंड स्टेज इज एटोनमी वर्सेस शेम और डाउट्स, एंड दैट इज रेंजेस फ्रॉम 1.5 year to 3 years of a child. Okay, so child
का जो भी डेवलपमेंट है 1.5 साल से 3 साल के बीच में, उसमें जो सेकेंड स्टेज है वो एटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट है. सो हियर द चाइल्ड डेवलप्स अ न्यू मोटर स्किल्स एंड लैंग्वेज एबिलिटी. इस एज पे बच्चा क्या होता है, थोड़ा बहुत मोटर स्किल डेवलप कर लेता है, चलने लगता है, और लैंग्वेज एबिलिटी भी धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होने लगती है. ओके, सो this engages in exploring his environment with the help of this motor skills and language ability. He tries to explore his environment. The child tries to explore his environment. Okay, he is experimenting his strength and limitations for achieving a sense of autonomy and independence. Okay, so whatever strength and limitations he has, he tries to experiment those for achieving a sense of autonomy and independence. Okay, so they needs personal controls. Again, the risk involved in activities like walking, running, pulling and handling the objects of his environment. Okay, or learning undesirable language also at this stage. So इस स्टेज पे बच्चे के अंदर क्या हो जाता है कि मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है, वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है ना, और लैंग्वेज एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो अपने आप को इंगेज रखता है कि एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने लगता है ना. आपने देखा होगा स्टेज पे बच्चे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें, खिलौनों को भी तोड़ के वापस से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना. तो उसकी जो स्ट्रेंथ है और लिमिटेशंस है, उसके थ्रू वो अचीव करना चाहता है सेंस ऑफ एटोनमी एंड इंडिपेंडेंस, है ना. तो इसी स्टेज पे बच्चा थोड़ा एटोनमी और इंडिपेंडेंस भी अचीव करना चाहता है ना. और वो अपने आप पे पर्सनल कंट्रोल्स भी रखना चाहता है, जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, लाइक वॉकिंग, रनिंग, पुलिंग एंड हैंडलिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिज इन्वायरमेंट. और कभी कभी बच्चा क्या होता है कि अनडिज़ायरेबल लैंग्वेज भी क्या होता है इसके अंदर, इसके थ्रू लर्न करने लगता है ना, जो डिज़ायर नहीं होता है. ठीक है, सो ये चीज़ें होती है इसके अंदर. अब इसमें क्या होगा कि इससे इट डज नॉट मीन दैट he should be denied a reasonable degree of freedom to acquire the sense of independence. Okay, he likes to do things in his own way. So what the parents have to do, parents can help their children in developing a healthy sense of autonomy through balance of firmness and permissiveness. Okay, so here we have to decide the limit of freedom, how much freedom the child should get. And the children denied the opportunity to develop a sense of independence by overprotective, harsh or restrictive parents begin to doubt their ability. They feel embarrassed or ashamed in the presence of others, है ना. तो आपने देखा कि कैसे बच्चों को जो इंडिपेंडेंस थोड़ा सा रखने की कोशिश करते हैं, एटोनमी उनको चाहिए रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से एटोनमी दे दें, बट आप थोड़ा बहुत उनको इटॉनमी और इंडिपेंडेंस दे सकते हैं ना. रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप दे सकते हैं, रीजनेबल डिग्री ऑफ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इस स्टेज पे बच्चा क्या चाहता है, वो अपने तरीके से कामों को करना चाहता है. तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स कैन डेवलप हेल्प द चाइल्ड इन डेवलपिंग हेल्दी सेंस ऑफ एटोनमी. तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा हेल्दी सेंस ऑफ एटोनमी डेवलप करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. और थोड़ा सा बैलेंस रखें, फर्मनेस एंड परमिसिवनेस. जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फॉर्म रहे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे परमिशन भी दे, है ना. तो आपको डिसाइड करना होगा एज ए पेरेंट के कितने लिमिट की फ्रीडम उनको देना है बच्चों को, है ना. तो बच्चों को कतई उनके अपॉर्चुनिटी को डिनाई नहीं करना है, जिससे वो ये महसूस ना कर सकें कि उनके अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है. काफ़ी पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव रहते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे क्या करने लगते हैं, वो अपने ही एबिलिटी पे डाउट करने लगते हैं जब उनको उनका मौका नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, है ना. और वो एम्बेरस फील करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं दूसरों के प्रेजेंस में. ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज है, दैट इज़ एटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट. सो द थर्ड स्टेज ऑफ एडिक्शन psychosocial development is initiative versus guilt, and that ranges from 3 years to 6 years. Okay, so here the child begins to take initiative in interacting with the environment. Okay, the child asks questions about each and everything he explored in his environment. Now the child engages in planning and carrying out activities of various kind. Okay, in case of child discouraged from taking initiative by his parents and guardians, who is not having faith in him,
he pulled down by unhealthy criticism, punished or rebuked by minor failures. Okay, so here at this stage, when he reaches between 3 to 6 years, he is interacting with the environment, he is taking the initiative for interacting with the environment. He has a lot of question in his mind while interacting with the environment, and he tries to explore by asking question. He engages in planning and carrying out activities of various kind. So in case of child is discouraged from taking initiative by his parents and guardians by not having faith in him, pulled down by unhealthy criticism, or punished or rebuked for minor failure, then what happens here? The child develops a sense of guilt leading to hesitation, indecision and lack of initiativeness. Okay, so when the child is not encouraged to take initiative, he will develop a sense of guilt leading to hesitation, indecision or lack of initiativeness. And in case of failure, he feels reasonable amount of guilt for having failed. But the child should be encouraged that he should learn from his failure. So the parent should allow the child to experiment with his initiative by properly supervising and guiding his activities. Okay, encourage him to develop a habit of self-evaluation of the results of his initiative, and needs to resolve the crisis of initiative versus guilt at this stage. So the parents should encourage the child to take initiative. Okay, so इस स्टेज पे क्या होना चाहिए कि चाइल्ड इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, उसके जहन में कई सारे सवाल होते हैं, और जब वो एक्सप्लोर करता है इन्वायरमेंट में तो वो सवाल उसके अंदर डेवलप होते जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस स्टेज पे बच्चा प्लानिंग में भी इन्वॉल्व होता है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ करना, उसकी प्लानिंग में भी इन्वॉल्व होने लगता है। लेकिन अगर यही स्टेज पे पेरेंट्स उसको डिस्करेज करने लगेंगे कि उस बच्चे के ऊपर फेथ नहीं उनका है ना, हेल्दी क्रिटिसिज्म उसको करते रहेंगे, पनिशमेंट करते रहेंगे छोटे छोटे फेलियर पे उसको है ना, तो चाइल्ड क्या करेगा, वो अपने अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट डेवलप कर लेगा, वो हेजिटेशन, इनडिसीजन, लैक ऑफ इनिशिएटिव उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। और अगर वो फेल हो जाता है ना, तो उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाएगी, है ना। बट ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको ये इंकरेज करना चाहिए कि दिस फेलियर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, है ना। तो पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि बच्चा क्या करे, वो अपने इनिशिएटिव से एक्सपेरिमेंट्स करे, उसको पेरेंट्स को सुपरवाइज करें, उनको गाइड करें उनकी एक्टिविटीज़ में, और इनक्रेज करें, जिससे बच्चा क्या करे, अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सके अपने रिजल्ट्स का, और ये क्राइसिस जो है सेल्फ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को, उसको रिजॉल्व कर सके। सो दिस इज़ द थर्ड stage. Now let us see the fourth, that is industry versus inferiority, that is ranges from 6 to 12 years. So अगर ये 6 to 12 years का एज देखेंगे आप, if you see this age, तो child begins to go to school, so child begins to attend the school actively. Okay, now the child learns various skills. Okay, the child learns various skills at this stage. The teacher as well as the school environment generates pressure on them to work hard in order to perform well. So they have to compete with their peers in terms of competence and productivity in school or other social situations. So he will likely to develop a sense of industry filled with a sense of achievement. He will be motivated to work harder and achieve more. Okay, सो अगर स्टेज पे आप देखेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, दैट रेंजेस फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स, तो बच्चा स्कूल एक्टिवली जाना शुरू कर देता है, स्कूल में जाके वेरियस स्किल्स सीखता है, वो लिसनिंग स्किल, ड्राइंग स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, कई सारे स्किल्स को वो सीखता है। और यहाँ पे लेकिन ये इन्वायरमेंट जो स्कूल का होता है, वहाँ पे टीचर ले लीजिए आप, या स्कूल इन्वायरमेंट ले लीजिए, उसके ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे अपने फेलो स्टूडेंट्स के जैसा। सो उसकी वजह से उसका कंपटीशन जो होता है अपने पीयर्स के साथ में होता है ना, इन टर्म्स ऑफ कि कितना कॉम्पिटेंट है वो, और उसको प्रोडक्टिविटी भी उसी के हिसाब से देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बच्चे के ऊपर कि वो सेंस ऑफ इंडस्ट्री डेवलप करता है, और सेंस ऑफ अचीवमेंट भी उसके ऊपर आता है, उसको मोटिवेशन मिलता है कि वो और ज़्यादा वर्क हार्ड करे और अचीव करे। ओके, सो इट डेवलप्स द चाइल्ड टू वर्क हार्ड एंड अचीव more.
So if you see at this stage, the performance remains inferior to that of his peers. If that is the case, then what happens? He does not satisfy his teachers and parents with his performance, and what he will do, he may begin to look down upon himself and develop a sense of inferiority. So अगर उसका परफॉर्मेंस इन्फीरियर रहता है अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से, तो क्या होगा, वो जो भी उसके टीचर्स का एक्सपेक्टेशन है, जो उसके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, कर पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो अपने आप को डाउन महसूस करने लगता है, इज लुक अपॉन डाउन अपॉन हिमसेल्फ एंड डेवलप अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी। फिर अपने फ्रेंड्स से और बाकी सबसे वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगता है, एंड ही डेवलप्स अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी in himself. Okay, so next stage of Erikson theory of psychosocial development is identity versus role confusion. That is the stage number 5, identity versus role confusion, that is from 12 years to 19 years. So the child reaches at this stage in the adolescence period, he begins to search for their own personal identity. So there is a certain changes in their bodies and mental functioning. So that is altered demand of society compel them to ask questions of them, redefining his own socio-psychological identity linked with his sudden and rapid bodily changes, anxiety and pressures. Okay, so अगर ये stage number 5 देखेंगे, identity versus role confusion, that is 12 to 19 ईयर्स, तो एडोलेसेंस के पीरियड में बच्चा पहुंच जाता है और अपनी ओन पर्सनल आइडेंटिटी को वो सर्च करने लगता है। उसकी बॉडी में और मेंटल फंक्शनिंग में बहुत ही सडन चेंजेस आते हैं स्टेज पे, और जिसकी वजह से अल्टर्ड डिमांड सोसाइटी की होती है, जिसको उसको कंपेल करती है कि अपने आप पे वो क्वेश्चंस पूछे और रीडिफाइन करे। ओके, रीडिफाइन करे अपने को सोशो साइकोलॉजिकली, है ना, कि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, एंग्जाइटी प्रेशर्स क्या है उसके ऊपर, तो उसको वो डिफाइन करे। सो ही एक्सपेरिमेंट्स विद वेरियस ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशन रूल्स टू अंडरस्टैंड हु ही इज़ एंड व्हाट ही कैन बी। तो वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है ऑक्यूपेशनल और एजुकेशन रूल्स को लेके, समझने की कोशिश करता है कि वो कौन है और क्या बनना चाहता है फ्यूचर में, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या उसको बनना है। ठीक है, so he may be unable to make the decision about his educational professional career or about making friends. so इस स्टेज पे नॉर्मली बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसका एजुकेशन क्या होगा, कौन से फील्ड में जाना है, प्रोफेशनल करियर क्या होगा और कैसे दोस्ती बनाना है ना। सो ही इज़ जस्ट हैविंग इन द क्राइसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन. So the lack of self-identification and role confusion may lead to over identification with villains or downs. Okay, तो अगर अपने आप को नहीं पहचान पा रहा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा सही से स्टेज पे, या उसके रोल कन्फ्यूजन रहता है, तो ये ओवर आइडेंटिफिकेशन की वजह से वो विलन या डाउन्स अपने आप को क्रिएट कर सोचने लगता है. तो शोइंग चाइल्डिश एंड इम्पल्सिव बिहेवियर एंड इनटॉलरेंस ऑफ अदर्स, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही इम्पल्सिव बिहेवियर शो करता है और इनटॉलरेंस शो करता है दूसरों को लेके. नाउ स्टेज नंबर 6, दैट इज इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन, दैट इज फ्रॉम 20 to 45 ईयर्स. सो अगर 20 to 45 ईयर्स देखेंगे आप, तो बहुत ही क्रूशियल एज है इंडिविजुअल की, और स्टेज में जो भी इंडिविजुअल है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की क्राइसिस रहती है उसके पर्सनालिटी में. तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या होगा, इंडिविजुअल सीक्स इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल क्लोज पर्सनल अटैचमेंट बाय मर्जिंग हिज आइडेंटिटी विद दैट ऑफ अनदर पर्सन. सो एट दिस स्टेज जो भी पर्सन इंडिविजुअल है वो इनफॉर्मल क्लोज पर्सनल अटैचमेंट के लिए जाता है ना, तो उसकी जो भी ईगो है, उसकी जो भी आइडेंटिटी है, उसको मर्ज करता है दूसरे पर्सन के ईगो और आइडेंटिटी के साथ, और एक क्लोज रिलेशनशिप अटैचमेंट डेवलप होती है. ओके, सो हियर द क्लोज इन्वॉल्वमेंट नॉर्मली हैव रिस्क ऑल्सो इवन लॉस ऑफ हिज ईगो और इमेज एज इज एविडेंस इन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इंटीमेट फ्रेंड्स. ओके, सो इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, वो अपने ईगो को उसको छोड़ना पड़ता है, अपनी इमेज को छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ही डेवलप्स एन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. तो आप देखेंगे कि हार्मोनियस रिलेशनशिप जब दोनों लोग अपने अपने ईगो और इमेज को थोड़ा अलग रख के करेंगे रिलेशनशिप में, तो
एक अच्छी रिलेशनशिप, हारमोनियस रिलेशनशिप डेवलप होती है, और इसी तरीके से इंटीमेट फ्रेंड्स भी होते हैं ना. सो अगर व्हेन फेल्स टू मर्ज वंस आइडेंटिटी विद दैट ऑफ अनदर पर्सन, रिलेशंस डिटोरिएट्स, है ना. तो अगर ये चीज़ें नहीं कर पाते, अपने ईगोज़ को नहीं मर्ज कर पाते हैं, अपने इमेज को नहीं मर्ज कर पाते हैं, तो क्या होता है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से, तो उनके रिलेशनशिप डिटोरिएट्स हो जाते हैं, एंड देन दे डेवलप अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, है ना. तो दोनों सेंस ऑफ आइसोलेशन डेवलप करेंगे, एंड पुलिंग अवे फ्रॉम रिलेशनशिप एंड ब्रेकिंग ऑफ टाइज. तो अपने रिलेशनशिप को वो ब्रेक कर देंगे, और अपने टाइज को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. तो सेंस ऑफ आइसोलेशन दे आर गोइंग टू डेवलप. ओके, सो दिस इज द 6th stage of Erikson theory. Now let's see the 7th stage. 7th stage is creativity versus stagnation, and that ranges from 45 to 65 years of age. So creativity versus stagnation. अब इस स्टेज पे पहुँचते जो इंडिविजुअल होता है वो स्टैब्लिश हो जाता है. ओके, एंड इट ट्राइज टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन प्रोफेशनल करियर. तो अब उसकी जॉब फिक्स होती है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है प्रोफेशनल करियर में. ही ट्राइज टू satisfy his needs, to needs to satisfy his needs, whatever needs he has, he tries to satisfy those. His basic concern is to establish and guide and participate in welfare of the next generation, okay, as represented by his own children, people, subordinates and people in general. So उसका basic concern होता है कि जो भी अपने बच्चों के लिए या दूसरे के लिए सबऑर्डिनेट्स को क्या करे, वो गाइड कर सके, उनके वेलफेयर में पार्टिसिपेट कर सके, है ना, उनको उसमें हेल्प कर सके. इसका बेसिक कंसर्न होता है. ओके, इस टेंडेंसी टू बिकम इगोइस्टिक एंड सेल्फिश. कभी कभी इसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेज पे, बिकॉज दे आर वेरी मच टूवर्ड्स डेवलप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल करियर, तो कभी कभी वो इगोइस्टिक हो जाते हैं, सेल्फिश भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्टेज पे. एंड दिस लीड्स टू स्टैग्नेशन, है ना. तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका करियर या उनका जो भी बिहेवियर है वो स्टैग्नेशन की तरफ हो जाता है ना. ठीक है. ओके, द लास्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन थियरी इज ego integrity versus isolation, that ranges from 65 years and onwards. So this is the final crisis of psychosocial development, and here the integration of successful resolution of the entire 7 previous crisis, है ना. तो अगर आपने 7 प्रीवियस जो क्राइसिस आपने है आपके पास आई, अगर उसमें आपने सक्सेसफुली सबको रिजॉल्व कर लिया है ना, सबको आपने रिजॉल्व कर लिया, तो आप ये स्टेज, इस 8th स्टेज में पहुंचेंगे, दैट इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस आइसोलेशन. सो हियर डेवलप पॉजिटिव आउटलुक्स अबाउट वंस एंड होल वर्ल्ड अराउंड, है ना. तो इस स्टेज में पहुंचने पे आप पॉजिटिव आउटलुक अपने लिए और वर्ल्ड के लिए आप डेवलप करते हैं. ओके, एंड इफ नॉट बीन एबल टू डू सो, फील डिस्पेयर एंड डिससेटिस्फाइड विद द वे दे हैव लिव्ड इन देयर लाइफ्स. ओके, सो अगर आपके कोई भी क्राइसिस, जो 7 प्रीवियस क्राइसिस है, उसको आपने सही से रिजॉल्व नहीं कर पाए अगर आप, तो आप डिस्पेयर फील करेंगे, डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, है ना, कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ को जिया है. ठीक है. सो दीज आर द 8 क्राइसिस और स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थियरी. सो लेट्स सी द एजुकेशनल implication of Erikson theory. So this helps in maintaining positive attitude and view the student as a capable, valuable individual. So इस theory की वजह से हम बच्चों के ऊपर, उनके behavior के ऊपर positive attitude develop कर सकते हैं, और ये view कर सकते हैं कि students जो हैं वो they are capable individuals. Okay, then teacher and parents can play a vital role in helping the adolescents through identity versus confusion crisis. तो हमने देखा कि सबसे सडन चेंजेस एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं, तो वहाँ पे टीचर और पेरेंट्स का रोल बहुत वाइटल है, वेयर दे कैन हेल्प एडोलेसेंट्स टू गो थ्रू द आइडेंटिटी वर्सेस confusion crisis more fruitfully. Then children should not be humiliated in front of their peers or anyone, है ना. कभी भी बच्चों को दूसरे के प्रेजेंस में ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए. एंड प्ले वे मेथड्स ऑफ एजुकेशंस और ग्रुप एक्टिविटी आर वेरी गुड, बिकॉज वी हैव सीन दैट द
personality or the human development take place in the psychosocial environment, and that is why we have to create that environment for the child. So playway method of education or group activity method will be good one for the child to develop his personality. Then reward children occasionally for good habits, punishment should be avoided. So basic thing is that we have to just reward the children for displaying good habits, and punishment should be basically avoided to develop the personality of the child. So thank you very much, hope you have just understood this topic, and if you have understood this topic, don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.